morning students. So today we have to see a new topic, that is the chemical reactions rate. That is the rate of chemical reactions. This is the 7th video of the chemical reactions, and after that next video will come, that is the corrosions. So up till now we have made or we have prepared, that is the 6th video on the chemical reactions. So the link of the given videos are given in the descriptions. So please subscribe Tantarpale sir Advanced Science Tutorial and press the bell icon and get all notifications of all videos. So let's start about the rate of chemical reactions. So देखो बच्चों, एक्चुअली रेट क्या है? रेट यानी कि स्पीड. So on the basis of rate of chemical reactions, on the basis of rate, chemical reactions can be converted into two types. That is the first of all, we have seen that about there are two types of changes. First one is called as the physical change and another one is called as the chemical change. So जैसे हम ये physical change या फिर chemical change देखते हैं, वैसे ही on the basis of speed of chemical reactions, on the basis of rate or speed of the chemical reactions, there are two types of chemical reactions. There are two types of chemical reaction. That is, one is called as the slow reactions and another one is called as the fast reaction. देखो जो हमें क्या देखना है? स्पीड. That is the rate of chemical reactions. So what is the rate and how we classified the particular given chemical reaction into slow reactions, fast reaction, etc. ये सभी हम अभी देखने वाले हैं. But before going to start particularly writing work, I request to all students, I request to all my dear students, take your notebook and pen with you and make your own notes. So let's start about the rate of chemical reaction. So on the basis of rate of chemical rate, the chemical reactions can be classified into two types. That is, one is called as the slow reactions and another one is the called as that is the fast reaction. Slow reaction यानी कि क्या? Those chemical reaction which take a longer durations for completion, it is called as slow reaction. For example, a rusting process, it is one is the that is the slow examples of slow reactions. It is the examples of slow reaction. For example, ionic reaction like NaOH and HCl, that is strong acid react with strong base. It is the examples of fast reaction. So in case of this means first of all, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था या फिर एग्जांपल अभी लिया है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयन, इट इज अ स्लो रिएक्शंस, that is the ionic reaction, that is the means NaOH plus HCl. This is one is the examples of fast reaction. From these all examples are numbers, there are numbers of examples that happens in our daily life. So why we call it as a particular reaction is the slow reaction and particular reaction is the fast reaction? So this is explained on the basis of rate. On the basis of rate, chemical reactions can be classified into two groups, that is called as the slow reaction and another one the fast reaction. So let's look about the example. For example, slow change and next one the fast change. So you know जैसे कि rusting process है, next one is the rotting of vegetables or maybe any other changes that happens in our environment. All these are the slow change. On the other hand, ionic chemical reactions, अगर कौन सी भी chemical reactions अगर टेम्परेचर पे जाता है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है. Another examples like the, for example, breaking of the glass, etc. These are examples of the fast reactions. Ignitions of the gas, that is LPG gas, it is the another examples of the fast reaction. So slow reactions और fast reaction में रेट का फर्क है, टाइम का फर्क है. जो जितनी जल्दी मीन्स those chemical reaction which take a shorter durations for completion, it is called as the fast reaction. and those change or those chemical reaction which take a longer durations for completion,
it is called as the slow change or slow reaction. So let's look about the rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction, on the basis of rate of chemical reaction, there are two main types of the chemical reaction. There are two main types of chemical reaction. One is called as the slow change or slow reaction, slow change or slow reaction, and another one is called as the slow change and slow reaction, and second one is called as the fast change or fast reaction. बराबर है, fast change या फिर fast reactions. So those change which takes place or which completed within a shorter duration is called as fast reaction or fast change, and those change which take a longer durations for the completion, it is called as the slow change. लेकिन स्लो चेंज को हम फास्ट चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लो चेंज को हम फास्ट चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्लो रिएक्शन अगर पर्टिकुलर फैक्टर्स यूज करते हैं सो स्लो रिएक्शंस का कन्वर्जन फास्ट रिएक्शन में हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, बात को समझो, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि अगर मैं पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर वो फैक्टर्स यूज करता हूँ तो केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है, यानी कि रेट जो है बढ़ जाता है, रेट इंक्रीजेज बाय यूजिंग द सम फैक्टर्स. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द फैक्टर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी हैव टू नो अबाउट द रेट. रेट जैसे कि हम फिजिक्स में पर्टिकुलर टर्म देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड. स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर्टिकुलर बॉडी ने या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलते हैं हम स्पीड. सो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर बॉडी कवर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज कॉल्ड एज द स्पीड. सो वैसे ही पर्टिकुलर टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं रेट. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration upon time, change in concentration. change in concentration बोले तो ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का भी हो सकता है, and upon time required or time taken, total time taken, so it is called as the rate of chemical reaction. So note down this point, that is what is the rate of chemical reaction. So it is the ratio of, that is the change in concentration to the total time taken, or rate of chemical reaction means the change in concentration takes place in unit time, it is called rate of chemical reaction. So on the basis of this rate, on the basis of time या फिर on the basis of rate, particular chemical reactions can be classified into two groups, that is one is called as the slow change या फिर slow reaction, and another one is called as the fast change or fast reaction. So these are the difference between the fast change and slow change. So इसमें हमें क्या देखना है, slow change की definition. So slow change की definition हम क्या लिख सकते हैं, those changes or chemical reaction which completed in a longer duration, or those changes or chemical reaction takes place in a longer duration, it is called as the slow change or slow reaction. और fast reactions के लिए क्या बोल सकते हैं, fast reaction is nothing but those changes which takes place within a shorter duration, it is called as the fast change or fast reaction. समझ में आया. So this is one is the rate of chemical reactions. बाद में हमें देखना है factors of chemical reactions या फिर factors affecting the rate of reaction. जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन मानो कि स्लो है लेकिन उसको मुझे फास्ट करना है, क्यों? सो देयर आर नंबर्स ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज रीजंस.
काहे के लिए वो रिएक्शन फास्ट करनी है। अगर मैं रिएक्शन को फास्ट करता हूँ, स्लो रिएक्शंस को अगर मैं फास्ट करता हूँ या फिर स्लो रिएक्शन का रेट मैं बढ़ाता हूँ, तो उसका प्रोडक्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, डिमांड जितने हैं उतना हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो लॉन्गर ड्यूरेशन में जो पर्टिकुलर रिएक्शन होते हैं उसको हम शॉर्टर ड्यूरेशंस में भी कर सकते हैं। सो इसके लिए जो केमिकल रिएक्शंस का रेट जो है वो बढ़ाना है। वैसे ही जैसे कि नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में जैसे कि प्रोसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो है, लेकिन अगर हम उसको फास्ट करते हैं सो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी ये अच्छा है। सो दीज आर द मीन्स अप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द मीन्स फास्ट रिएक्शन। हमें फास्ट रिएक्शंस क्यों करनी है? क्योंकि स्लो चेंज में बहुत ही टाइम जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, तो हम अभी देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर बोर्ड पे लिखे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स, नेचर यानी कि रिएक्टिविटी। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट वन द साइज ऑफ केमिकल पार्टिकल या फिर साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। थर्ड वन इज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। फोर्थ वन इज द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्टेंट एंड नेक्स्ट वन द कैटलिस्ट। ये मेन फैक्टर्स है जिस पे रिएक्शंस का रेट डिपेंड्स रहता है। देखो समझो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमें ये फैक्टर्स लिखने हैं, और अगर 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चंस आता है तो एक एक फैक्टर्स को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो बराबर यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड वन इज द कौन सा है, साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल। नेक्स्ट वन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, अनदर वन द टेम्परेचर एंड नेक्स्ट वन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज द मेन इफेक्टिव पार्ट विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, due to which means we can change the even nature of the reactants also into means when the reactant get converted into product. ये बराबर ध्यान में रखना है कौन कौन से फैक्टर्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन बाय वन हम उसे देखते हैं। पहला जो फैक्टर्स है वो है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट्स। व्हाट इज बाय नेचर? नेचर यानी कि अभी जैसे मैंने बताया था, नेचर यानी कि उसके रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी मैं यहाँ पे और करके लिखता हूँ। साइमल्टेनियसली आप भी लिख सकते हो, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की जो है रिएक्टिविटी को डिपेंड्स करते हैं यानी कि रेट पे। कैसे? अगर मैं लेता हूँ पर्टिकुलरली वन एलिमेंट दैट इज द एल्यूमिनियम एंड अनदर वन इज द जिंक। ये है एल्यूमिनियम और नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ जिंक। वन इज कॉल्ड एज द एल्यूमिनियम एंड अनदर वन द जिंक एंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितना यहाँ पे डाइल्यूशन है इतना ही यहाँ पे मैंने डाइल्यूशन लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। डाइल्यूट। अगर इसकी जो रिएक्शंस है क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा ये LCl3 एंड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 3 से, और 6 है तो यहाँ पे 2। क्लोरीन 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए, ड्यू टू विच एल्यूमिनियम चेंजेस टू 2 फैक्टर्स, दैट इज another one in case of this, it get converted to zinc chloride ZnCl2 plus what we get H2 hydrogen gas liberated. यहाँ पे ZnCl, that is the twice HCl. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? तो यहाँ पे मुझे डाइल्यूट HCl अगर रिएक्ट होता है Zn के साथ तो ZnCl2। यहाँ पे ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं यहाँ पे भी निकलेंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन द रेट ऑफ राइजिंग ऑफ बबल्स
द रेट ऑफ राइजिंग ऑफ बबल्स इज मैक्सिमम। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है बबल्स राइजिंग का मैक्सिमम है और यहाँ पे जो है वो है मिनिमम। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे ज़्यादा है? सो रेट ऑफ रिएक्शंस राइजिंग ऑफ बबल्स इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। सो क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो पर्टिकुलरली नेचर ऑफ द रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट ये बहुत कुछ मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। अगर मैं रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव अगर एलिमेंट लेता हूँ या फिर लो रिएक्टिव एलिमेंट लेता हूँ, सो केमिकल रिएक्शंस फास्ट किसकी होगी? सो फास्ट जो होगी वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए और लो रिएक्टिव की उससे थोड़ी कम रहेगी। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो नेचर पे यानी कि रिएक्टिविटी पे डिपेंड्स करता है। दैट इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स एज द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स या फिर रिएक्टेंट गोज ऑन इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये बराबर ध्यान में रखना है। कौन से? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स या फिर रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स के जगह में रिएक्टेंट लिखूंगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? सो रिएक्टिविटी ऑफ द मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस, बनो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, रेट ऑफ ये ऐसा लिख सकते हैं फिर। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इज रेट of chemical reaction, rate of chemical reaction is directly proportion to reactivity of reactants, यानी कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना उसका ज़्यादा रेट, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना उसका रेट ज़्यादा रहेगा, बराबर है। सो दिस इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फर्स्ट फैक्टर दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। समझ में? सो एक बार फिर से दोहराता हूँ। देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ या फिर जिंक लेता हूँ, सो एल्यूमिनियम मैक्सिमम या फिर हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, और अगर दोनों को मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ, सो when aluminum react with the dilute hydrochloric acid, then it gives rise to aluminum chloride salt with the liberation of hydrogen gas, या फिर zinc react with the hydrochloric acid, it gives rise to zinc chloride with the liberation of hydrogen gas। दोनों यहाँ पे जो है सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ राइजिंग ऑफ बबल्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू जिंक। सो भाई ये क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे जिंक से। सो जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उतना केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा, जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा केमिकल का रेट, बराबर है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स या फिर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया अभी। सो साइज ऑफ पार्टिकल, रिएक्टेंट पार्टिकल, तो एक मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल फॉर्म्स दैट इज द पीसेस फॉर्म, एंड अनदर वन आई हैव टेकन दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट इन द पाउडर फॉर्म। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर फॉर्म में लेता हूँ या फिर पीसेस फॉर्म में लेता हूँ, तो उसके रिएक्शंस मैं करूँगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर दोनों की यानी कि डाइल्यूशन तो सेम है और सिर्फ पार्टिकल की जो साइज है वही कम ज़्यादा हुई है। सो अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन में पीसेस के साथ करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, CO2 गैस एंड वाटर इज फॉर्म साइमल्टेनियसली। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर पाउडर फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो मुझे मिलेगा सेम प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट लिबरेटेड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म। सो दोनों इसमें जो प्रोडक्ट है वो सेम मिलेगा क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो सेम है, लेकिन जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, सो केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है, जहाँ पे पाउडर फॉर्म है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू पीसेस। यानी कि
जितनी पार्टिकल की साइज कम से कम उतना ही केमिकल का रेट रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम। सो यहाँ पे देखो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखा, समझ में आ रहा है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज, यानी कि अगर पार्टिकल की साइज मिनिमम होती है, पाउडर फॉर्म होती है, जितनी कम से कम पार्टिकल की साइज यानी कि रिएक्टेंट की साइज कम रहेगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट रहेगा, बराबर है। सो पार्टिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल या फिर पार्टिकल साइज, बराबर है। सो दिस इज वन इज द अनदर फैक्टर दैट इज द साइज ऑफ केमिकल रिएक्टेंट। देखो अब नेक्स्ट थर्ड जो फैक्टर है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या मायने रखता है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज द मेन फैक्टर दैट इज द विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी जैसे कि रिएक्शंस देखे हमने पार्टिकल साइज के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वही एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में भी सेम है, यानी कि पीसेस फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में, मैं यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लूँगा और इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर करता हूँ तो प्रोडक्ट मुझे सेम मिलेगा, दैट इज द CaCl2 प्लस CO2 गैस एंड H2 इज आल्सो फॉर्म। CO2 गैस गेट लिबरेटेड एंड H2O, तो यहाँ पे 2Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सो यहाँ पे 2। सो अगर मैं पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट को कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो उससे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फिर से कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ दैट इज इन द पाउडर फॉर्म एंड ट्रीटेड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको किसके साथ ट्रीट करूँगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं ट्रीट करता हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस H2O एंड CO2, यानी कि प्रोडक्ट तो मुझे सेम मिलेगा क्योंकि रिएक्टेंट ही सेम है, लेकिन जो रेट ऑफ राइजिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड है या फिर रेट ऑफ राइजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अगर मैं कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ अगर ट्रीटमेंट करता हूँ तो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि मैक्सिमम रहेगा। और अगर डाइल्यूट्स के साथ रिएक्शंस करता हूँ तो वहाँ पे जो रेट है वो मिनिमम रहेगा। सो इसका मतलब है अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportion to the concentrations of reactant। जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा उतना रिएक्शंस का रेट भी ज़्यादा, और जितना कॉन्सेंट्रेशन कम से कम उतना ही रेट ऑफ रिएक्शंस भी कम से कम रहेगा। सो फर्स्ट फैक्टर जैसे कि देखा था नेचर ऑफ रिएक्टिविटी, that is the nature of reactant, that is the reactivity of the reactant. Second one is the size of reactant particles, another one the concentrations. So this is the third factor. Another one, fourth factor is that take the screenshot of the writing work। next one fourth factor, that is कौन सा fourth factor, तो fourth factor है temperature of the chemical reaction, temperature। So temperature is main factor which increases the rate of chemical reactions। कैसा है देखो, अगर मैं पर्टिकुलर रिएक्शंस कौन से भी अगर रिएक्शंस करता हूँ तो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शंस करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजेस, लेकिन टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है सो केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। सो इसका मतलब है increasing in the temperature rate of chemical reaction increases, as the temperature goes on increases then the rate of chemical reactions also increases। for example अगर particularly decomposition reactions है, so decomposition reaction या फिर particularly लाइमस्टोन का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था कैल्शियम कार्बोनेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग
एट अबाउट, एक पहले तो नॉर्मल पे हीट करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 गैस गेट लिबरेटेड। और बाद में अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को मैं स्ट्रांगली हीट करता हूँ अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, सो यहाँ पे मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ राइजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस मैक्सिमम रहेगा एज कंपेरेटिव टू दिस, बराबर, यहाँ पे मिनिमम रहेगा। यानी कि जितना टेम्परेचर कम रिएक्शंस का रेट उतना ही कम। रिएक्शंस का रेट ज़्यादा कब रहेगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। सो नोट डाउन, सो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportion to temperature of the chemical reaction, temperature. So rate of chemical reaction is directly proportional to the temperature of the chemical reactions, बराबर। As the temperature goes on increases, then the rate of reactions also goes on increases. Another one, last factor, that is the catalyst. So क्या है catalyst? So catalyst is the substance which increases the rate of chemical reaction. Actually catalyst की definition अगर हम करते हैं, catalyst क्या है? Catalyst is the substance which doesn't take part in chemical reaction but enhance the rate of reaction, लेकिन वो reactions का rate increase करता है। As the catalyst used in the chemical reaction, it increases the rate of chemical reactions. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, that is formations of oxygen. Example है formation of oxygen from the potassium chloride. So potassium chloride का फार्मूला ये है, अगर मैं इसको जस्ट हीट करता हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, KCl with the liberations of oxygen gas. जस्ट हीटिंग किए है, बराबर है। यहाँ पे 2O है तो मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 होगा, और 6 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा मुझे 3 से। अगर यही रिएक्शंस में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही रहा है, लेकिन अगर मैं यही केमिकल रिएक्शंस अगर मैं हीट तो करूँगा ही, लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में अगर केमिकल रिएक्शंस करता हूँ तो रिएक्शन का जो रेट है प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा, लेकिन रिएक्शंस का जो रेट है वो मैक्सिमम रहेगा, यानी कि फास्ट रहेगा, बराबर। सो ये मैक्सिमम रेट रहेगा, यहाँ पे मिनिमम रेट रहेगा। सो इसका मतलब है अगर मैं कैटलिस्ट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस में अगर यूज करता हूँ सो रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। अनदर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल is on reduction get converted to वनस्पति घी। यहाँ पे वनस्पति घी में ये कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएक्शंस का रेट कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे मैं निकेल अगर यूज करता हूँ सो रिएक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट वन पर्टिकुलर इज द सब्सटेंस, कैटलिस्ट ये जो है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में वैसे तो यूज़ नहीं होता, लेकिन रिएक्शंस को बढ़ाने में उसका काम आता है, या फिर वो रिएक्शंस का रेट जो है बढ़ाता है, बराबर है। सो दीज आर द मेन फैक्टर दैट इज विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल reaction is directly proportional to catalyst, अगर केमिकल रिएक्शंस में अगर कैटलिस्ट यूज करता हो सो रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।